हिप चल रहा था, हिप में केस की अप्रोच हो गई थी, उसके बाद डायग्नोसिस हो गई थी। डायग्नोसिस में हम लोग के what we had found was something which is congenital traumatic. Congenital, we had dealt with congenital dislocation of hip. Traumatic, we had dealt with fracture neck of femur and trochanteric fracture. We had to deal with various types of dislocation of hip. All right. Among the differential diagnosis of fracture neck of femur, we had to deal with two conditions: stiff femoral epiphysis and perpendicular. Because all these three conditions up to here have a common deformity, that is flexion, adduction, external rotation. From here it becomes flexion, adduction, internal rotation. Alright, and this flexion, adduction, internal rotation is typical. If you say there is shortening, true shortening, then it becomes posterior dislocation of hip. If you say no shortening, then it is psoas, iliopsoas spasm, which can have an extra-articular cause or an intra-articular cause. The extra-articular cause is when rotation is free. Then you think about appendicitis, amoebic encephalitis, ilioinguinal lymphadenitis, any inflammatory condition, osteomyelitis of the ilium that can cause spasm of the psoas muscle, torsion of undescended testes, ovarian torsion, problems with the unascended kidney, anything in the iliac fossa can cause iliopsoas spasm, but rotation is free here. If there is rotation is decreased or painful, if the rotation is decreased or painful, then your diagnosis becomes tuberculosis of hip stage. That means the articular cartilage is involved. TB hip is a very interesting condition because in the first stage of tuberculosis there is synovial effusion. So the hip goes into flexion, abduction, external rotation. Okay. In the second stage, the articular cartilage gets involved. So any movement becomes painful. So all the muscles around the hip go into spasm. And the most powerful muscle is iliopsoas. Therefore it pulls the hip into flexion, adduction, internal rotation.
no true shortening. Of course there will be apparent shortening, क्योंकि अगर adduction deformity है तो लिम्ब को पैरेलल लाने के लिए पेल्विस टिल्ट हो जाएगी, इसलिए ASIS ऊपर चली जाएगी, इसलिए apparent shortening तो होगी but true shortening नहीं होगी. तो this is TB stage. और ये जो posterior dislocation of hip है ये congenital हो सकता है, traumatic हो सकता है, pathological हो सकता है और paralytic. तो जैसे ही TB की थर्ड स्टेज हुई, तो थर्ड स्टेज में या हेड डिस्ट्रॉय हो गया या लिगामेंट लैक्स हो गया, तो क्या होगा? पैथोलॉजिकल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो गया. पैथोलॉजिकल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन. टीबी जो है बहुत शुरू में साइनोवियल एफ्यूजन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन. सेकंड आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट, फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन. और थर्ड स्टेज में हेड एसेटेबुलम डिस्ट्रक्शन और लिगामेंटस डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू पैथोलॉजिकल posterior dislocation of hip. So this is TB की अगर stage 1, stage 2 और stage 3 आ रहे हैं तो हिप की कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती हैं ये पता रखते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग जो हैं यहां से आगे चलते हैं. We are studying dislocation. And dislocations are anterior, posterior or central. ठीक? Now, टिपिकली क्या होता है? टिपिकली होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए, there is a person who is sitting in the car and his knee is flexed. His knee is flexed. So when there is a crash, there is pressure on the dashboard strikes against the knee. Now, if at that particular period of time the hip is abducted, the head will go anterior. If it is adducted, the head would go posterior. If it is in between, the head will fracture the center of the acetabulum and go inside. So depending on, it's a dashboard injury, there is a vertical pressure on the femur. So if depending on the amount of adduction or abduction, या anterior dislocation हो जाएगा या central dislocation हो जाएगा और या posterior dislocation हो जाएगा. Posterior dislocation में काफी हद तक acetabulum हेड को कवर करता है. तो अगर बहुत ज्यादा एडक्शन है तो बिना डैमेज की acetabulum को निकल जाएगा, और अगर एडक्शन कम है तो इट विल bang against the posterior rim of acetabulum and fracture the posterior rim of acetabulum with it. So there will be a fracture dislocation. समझ गए? acetabulum पीछे से इस तरह से है और इस तरह से है, कवर कर रहा है. अगर एडक्शन ज्यादा है तो ये हेड निकल जाएगा, और अगर एडक्शन कम है इस पे बैंग करके पोस्टीरियर रिब को ले जाएगा. तो काफी चंक ऑफ पोस्टीरियर रिब को ले गया तो तुम अगर डिस्लोकेशन रिड्यूस भी कर लोगे तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, डैशबोर्ड इंजरी, एंड दैट डिसाइड्स व्हाट डिसलोकेशन. अब पेशेंट तुम्हारे पास कैसे आएगा? हाउ विल द पेशेंट कम टू यू? द पेशेंट कम्स टू यू, देयर इज अ डैशबोर्ड इंजरी. पेशेंट कम्स टू यू with pain, swelling, deformity, loss of function around the right or left hip. There is a flexion, abduction, external rotation deformity with flexion, abduction, external rotation deformity if it is anterior dislocation.
with true lengthening. That's the only traumatic injury where you will get true lengthening. Or you have flexion, adduction, internal rotation with true shortening above the trochanter. With एक word important है, true shortening above the trochanter, which is the posterior dislocation. Central dislocation of hip is a joker. उसमें कुछ भी हो सकता है ना, anything between these two. But the two diagnostic signs of central dislocation of hip are Morris's bitrochanteric test, जिसमें कि दोनों ट्रोकैंटर के ऊपर रजिस्टर रख के क्यूबिक सिम्फाइसिस से डिस्टेंस नापते हैं दोनों। तो जिस तरफ सेंट्रल डिस्लोकेशन है उस तरफ ट्रोकैंटर है मूव इनसाइड। तो सस्पेक्ट कैसे करोगे कि ट्रोकैंटर की प्रोमिनेंस घट जाएगी। पैल्पेशन में टेम्परेचर, टेंडरनेस, ट्रांसमिटेड मूवमेंट, टेलिस्कोपिक साइन, ट्रोकैंटर और वैस्कुलर साइन ऑफ नारद ये देखते थे नहीं देखते थे? ट्रोकैंटर के बारे में देखते थे कि ट्रोकैंटर इज थिकेंड, टेंडर एंड प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट बढ़ गई या प्रोमिनेंस घट गई? अगर प्रोमिनेंस घट गई इसका मतलब ट्रोकैंटर इज मूव्ड इनसाइड। तो Morris's bitrochanteric test is one sign of central dislocation of hip. The other is do upper rectal examination. You may be able to feel a bony mass in the lateral part of pelvis, which may or may not move with rotating the head. अगर मूव कर जाता है तो हेड है ही, अगर नहीं मूव करता है इसका मतलब हेड और तुम्हारी फिंगर के बीच में एसेटाबुलम का पीस है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ सेंट्रल डिस्लोकेशन। अगर पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप है तो देयर विल बी अ फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी विद ट्रू शॉर्टनिंग अबव द ट्रोकैंटर। अबव द ट्रोकैंटर कैसे पता लगाएंगे? ब्राइट्स ट्रायंगल, नेरेटर्स लाइन, शूमेकर्स लाइन, शिनीज पैरेलल होता है, चार फिजिकल साइन। ठीक है, अब इस मरीज में क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? सबसे पहली बात ये करेंगे कि उसको एनेस्थीसिया में रिड्यूस करना है, इसलिए उसको डिल ओरली कर देंगे। दूसरी बात उसको स्प्लिट बांध देंगे। तीसरी बात उसमें एक्सरे पेल्विस कराएंगे। ठीक है, एपीव्यू। तो क्या होगा? हेड विल नॉट बी इन द एसेटाबुलम, so there will be incongruity. ये एसेटाबुलम है, ये हेड, so there will be incongruity. Shenton's line will be broken. Shenton line जो ऑब्टरेटर फोरामेन से आती है और नेक ऑफ फीमर में जाती है, that will get broken. Vascular sign of Narad will be negative. Anyway, वो तो क्लिनिकल साइन है। इसके बाद बहुत केयरफुली क्या देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एसेटाबुलम की रिम फ्रैक्चर्ड है। अगर एसेटाबुलम की रिम फ्रैक्चर्ड है तो कितना बड़ा फ्रैगमेंट, ये एक्सरे पे जज करने की कोशिश करेंगे। एक्सरे पेल्विस विद बोथ हिप्स इन आइडेंटिकल पोजीशन, प्रेफरेबली इन आइडेंटिकल पोजीशन, जिससे कि कंपेयर कर सको। अब पेशेंट जो है स्प्लिंट लगा के एक्सरे से लौट आया, अब उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने का तरीका क्या है? कोई बता सकता है? हाउ विल यू रिड्यूस अ पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप? पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया, लाइंग ऑन द फ्लोर, है ना? पहले जमाने में लाइंग ऑन द फ्लोर कर लेते थे। अगर पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया है और लाइंग ऑन द फ्लोर है, ऑन द फ्लोर है मान लो, तो ये वाला जैसे हिप है, ये वाला हिप है, ये फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन में है। दिख रहा है सबको?
अब इसको तुमने और फ्लेक्स एडक्ट इंटरनली रोटेट कर लिया लाइक दिस, अंदर को डायरेक्टेड है ना बॉडी के रिलेशन। इसके नीचे रखा कंधा, उसका जो पिक्चर है वो ये है कि अगर इस तरह से ये हिप है, ये बॉटम है, ये एब्डोमेन है, तो तुम्हारा कंधा जो है दिस इज योर शोल्डर, और तुम भी बेंड हो। समझ में आ गई? समझ में आ गई नहीं आ गई? ये सर है। और इसका ये वाला पोर्शन जो है ये हाथ से पकड़ लिया, इस हाथ से इस वाले पोर्शन को पकड़ लिया लाइक दिस। हाँ, अब अगर तुम उठोगे तो क्या होगा? ट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा? सपोजिंग यू ट्राई टू गेट अप, देयर विल बी अ वर्टिकल ट्रैक्शन ऑन द फीमर। तो अगर एडिक्वेट डिग्री ऑफ एडक्शन इंटरनल रोटेशन कर रखा है तुमने, इसका मतलब द हेड इज नाउ बियॉन्ड द रिम ऑफ एसिटाबुलम। जैसे ही तुमने ट्रैक्शन दिया, इट विल बी रिड्यूस्ड, इट विल बी रिड्यूस्ड, यू कैन फील द क्लंक। इसको इस तरह से करना चाहिए, ऐसे नहीं खींचना चाहिए। ऐसे खींचोगे तो क्या होगा? ऐसे करके तुम अगर खींच रहे हो तो क्या होगा? तो तुम्हारी डिस्क कोलैप्स हो जाएगी, है ना? Don't pick up any heavy thing like this, because if you do it, your disc will go. Therefore, this is the technique of giving traction. समझ में आ गई नहीं आ गई? Have you followed it? Huh? That is the method of giving traction. Of course, मैं जो कंधा बना लिया ना, ये कंधा एक्चुअली इस नी के पास होता है, यहाँ पे। Alright? तो तुमने जो ट्रैक्शन दिया, जैसे ही ये as soon as this hit, you hear that sound, और तुम्हें लगा कि इसकी लेंथ बढ़ गई इस पोजीशन में, वैसे ही नी को ले जाओगे बाहर और एक्सटेंड कर दोगे। तो अभी नी अंदर था, अब नी बाहर हो गया और एक्सटेंड हो गया। हाँ, इस मेथड ऑफ रिडक्शन को कहते हैं बिगलोस मेथड, बिगलोस मेथड ऑफ रिडक्शन। So what do? You flex, adduct, give traction, reduce the hip, abduct, externally rotate, extend. Circumduction method of reduction of posterior dislocation. ठीक है? And then you maintain the reduction by traction, by giving a below knee balance in traction. 3 to 4 weeks after confirming the reduction by X-ray. और टेलीस्कोपी करके ये भी देख लेते हैं कि अनस्टेबल तो नहीं है। अगर तुम्हें फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट दिख रहा है एसिटाबुलम का, तो यू मस्ट मेक श्योर दैट द एसिटाबुलर फ्रैगमेंट इज रिड्यूस्ड एंड यू मस्ट ट्राई टू सी न्यूट्रल पोजीशन में। टेलीस्कोपी करके देख लो कि अनस्टेबल तो नहीं है। अगर अनस्टेबल है तो एसिटाबुलम बाद में फिक्स करना पड़ता है। ठीक है? You maintain it for 3 to 4 weeks and then follow it up by gradual physiotherapy. Now, supposing closed reduction fails. Closed reduction fails. Or the case is old. 3 हफ्ते तक आ जाता है, 3 weeks तक you may be able to reduce it by manual. तो क्या करते हैं? यहाँ femoral condyle में एक पिन डाल देते हैं। You put a pin like this, और उसको skeletal traction देते हैं। You can give
skeletal traction on the adducted flexed hip. ये मेथड जो डिस्क्राइब किया ये हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर आरसी गुप्ता इलाहाबाद के एमएलएन मेडिकल कॉलेज। उन्होंने ये ट्रैक्शन का मेथड डिस्क्राइब किया ओल्ड केसेस में भी रिडक्शन अचीव करने का। Why aren't you very keen to open reduce? Because there is a very high chance of avascular necrosis. Because there is a very high chance of AVN, avascular necrosis. Blood supply बहुत डैमेज हो जाती है। तीसरी बात है ओपन रिडक्शन। जिसने CDH का ओपन रिडक्शन कर दिया वो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन का 100% ओपन रिडक्शन कर देगा। क्योंकि CDH में हम लोगों ने क्या क्या ध्यान रखा था कि हम लोगों ने आवर क्लास कैप्सूल को ठीक किया था, हम लोगों ने एसेटाबुलम को लिगामेंटम टीडीज और फाइब्रस टिश्यू से एम्प्टी किया था, और हम लोगों ने पेल्वी फीमोरल मसल्स जो उसको नीचे डिसेंड नहीं करने दे रहे थे उनको डील करने की कोशिश की थी by either shortening the femur or releasing the muscles। ठीक है, तो जिसने congenital dislocation of hip reduce कर लिया ओपन, वो traumatic dislocation posterior dislocation पे reduce कर लिया। ठीक है, और अगर बहुत पुराना हो गया नहीं reduce कर पा रहे तो क्या करोगे? बोलो, congenital dislocation नहीं reduce कर पा रहे तो क्या किया था? बताओ भाई। pelvic support osteotomy को थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे। pelvis जो है इस तरह से बेसन शेप कैविटी है, ठीक है, इधर वाला भी है। बेसन जानते हैं ना, कितना हाथ होते हैं। ये फॉल्स पेल्विस है, ये ट्रू पेल्विस है। और अब हम इसमें जरा सा जो फीमर है उसको हमको ये वाली शेप दे दी, ये वाली शेप दे दी ना। ये जो लोअर एंड ऑफ फीमर है वो ट्रू पेल्विस के पैरेलल हो, जो अपर एंड ऑफ फीमर है वो फर्स्ट पेल्विस के पैरेलल हो। यहाँ पे ये प्रोपेंटर है, ये नेक पड़ी हुई है इस तरह से ना। एंड दिस वी हैव टू डू एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ ischial tuberosity, एट द लेवल ऑफ ischial tuberosity है यहाँ, ऐसे है पेल्विस। तो ये वाला एंगल पेल्विक एंगल है, दिस इज द पेल्विक एंगल। और ये हमें मालूम है कि ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। सही? हाँ? अब ऑस्टियोटमी देखो, डिटेल में देखो। ऐसे ऑस्टियोटमी है and you want this angle, you want this angle to be equal to, this angle should be equal to pelvic angle, isn't it? तो बताओ ये क्वाड्रिलैटरल जो बना तुम्हारा, ये जो क्वाड्रिलैटरल बना, इसके चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम हुआ 180। तो दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम कितना हुआ? इसका और इसका सम कितना हुआ? 180। सही? हाँ, करेक्ट। और इसका सम भी 180 है, तो ये एंगल बराबर हो गया एंगल ऑफ ऑस्टियोटमी।
इसका मतलब ये हुआ कि the angle of osteotomy at the ischial tuberosity is equal to pelvic angle. और जब ऐसा हो जाएगा तो ये ना तो ऊपर जा सकता है ना एबडक्ट हो सकता है, क्योंकि उसको एबडक्ट करोगे तो लड़ जाएगा इससे, और ना एडक्ट हो सकता है. तो the hip becomes stable and the tendon burst gate is lost. So old posterior dislocation of hip में क्या करते हैं? pelvic support system. समझ में आ गई? और इसको फिक्स कर देते हैं. इसको फिक्स कर देते हैं. एंटीरियर प्लेट होती है जिसमें कि pelvic angle के बराबर एंगल होता है. यहाँ पे स्क्रू डाल देते हैं, तो this gets fixed at the pelvic angle. This plate is called as bachelor's plate. This plate is called as bachelor's plate. Posterior dislocation है revision. Following the dashboard injury, a 20 or 30-year-old male presents with flexion, adduction, internal rotation deformity around hip, with true shortening above the trochanter. There is pain, swelling, deformity, and loss of function around hip. Telescopy is positive. Vascular sign of Narath is positive. X-ray reveals a break in the Shenton's line. Acetabulum fracture plus or minus. Patient is reduced by Bigelow method under anesthesia and immobilized by traction or plaster for 3 weeks. Followed by gradual weight gain. ये तो सीधी कहानी हो गई. Complications: avascular necrosis of head, osteoarthritis, inability to reduce. Inability to reduce can be treated by gradual reduction by skeletal traction, R.C. Gupta's method, or open reduction, or still unreduced for long period of time can be treated by pelvic support osteotomy. So here this is the story of posterior dislocation. Central dislocation of hip अगर है तो central dislocation of hip में ये हेड अंदर चला गया, तो ये ट्रोकैंटर है. तो इस हेड को बाहर खींचने की कोशिश करोगे ना, you try to pull it up, so you can give a traction here which is in the direction of neck, or it can be in this direction also, and you can give a traction like this. So you give a lateral and longitudinal traction so that by law of parallelogram of forces, the traction, the resultant traction is in the direction of neck, and the head is pulled out as far as possible. So that is what you do about central fracture dislocation. It's treated by lateral longitudinal traction. All right. Then we move on to inflammatory conditions around. तुम देखते हो ना, थोड़ा बड़ा पड़ाव है इसके बारे में जो याद रहे, है ना? अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूं इनको 2 घंटे पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो गया तो इनके काम का नहीं है, क्योंकि वो 10-15 मिनट में जो एग्जाम में पूछेगा तो ये याद नहीं रख पाएंगे. ठीक है. इसके बाद इंफ्लेमेटरी कंडीशंस. इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में सेप्टिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस. ठीक. तो सेप्टिक आर्थराइटिस जब
न्यूनेट में बच्चे में तुम लोगों ने नीडल ली और नीडल लेके फीमोरल वेन से ब्लड निकालने की कोशिश की और नीडल कहां चली गई? हिप में। तो बच्चे में हिप इन्फेक्ट हो जाता है, बच्चा रोने लगता है, बुखार आ जाता है, छूने नहीं देता है ना, पैर बिल्कुल नहीं हिलाने देता है। और पैर किस पोजीशन में होगा? पस अगर इकट्ठा हो गया अंदर हिप के, फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। अगर एब्डक्शन में होगा तो अगर लिम्ब पेल्विस यूं है और हिप एब्डक्शन में पड़ा होगा तो इसको लिम्ब पैरेलल करने के लिए एएसआईएस नीचे हो जाएगी, इसलिए अपेरेंट लेंथनिंग हो जाएगी। तो फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन विद अपेरेंट लेंथनिंग, ठीक है। यही कंडीशन जो है एडल्ट में भी होगी, पर उसमें हिस्ट्री फर्क हो सकती है। हिस्ट्री है कि देयर मे बी अ हेमाटोजेनस स्प्रेड, leukocyte counts will hit the roof, all right, polymorphonuclear leukocytosis होगी। अगर एस्पिरेट करो तो पस मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है आर्थ्रोटमी, drain that pus, and डिस्टेंशन ड्रेनेज। जो जॉइंट का ट्रीटमेंट है, कहीं और एक्सेस है तो ट्रीटमेंट है इंसिजन ड्रेनेज। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में एक्सेस है, तुमने इंसिजन दिया, बस बाहर निकल गया, सॉफ्ट टिश्यू कोलैप्स कर गई, कैविटी कोलैप्स कर गई। पर जॉइंट की कैविटी तो कोलैप्स नहीं करती कभी। इसमें you put in a tube which irrigates it by a combination of surfactant like Savlon, antiseptic or antibiotic। तो surfactant, antiseptic, antibiotic solution से अंदर जाएगा फ्लूइड और सक्शन ड्रेन होगा। दो बढ़िया सक्शन ड्रेन लगा दोगे तो उससे ड्रेन होगा। So that you keep on irrigating it for 72 hours, 72 3 or 4 days, till leukocyte counts drop, till temperature drops, and till it becomes stainless. ठीक है? And it's an emergency in a neonate. Okay? So distension drainage. It is incision drainage in soft tissue, but distension drainage in septic arthritis. And of course you will send the pus for culture sensitivity and you will give antibiotic according to culture sensitivity. अब adult की septic arthritis में और child की septic arthritis में फर्क क्या है? एडल्ट की सेप्टिक आर्थराइटिस में बोनी एंकाइलोसिस होगी। दैट मींस फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन में हिप जो है फ्यूज कर जाएगा, कार्टिलेज डैमेज होगा, फाइब्रस टिश्यू कनेक्शन होंगे अक्रॉस द सेटअप एंड बोनी कनेक्शन हो जाएंगे, द हिप विल फ्यूज। इसलिए यू हैव टू मेंटेन द हिप इन फंक्शनल पोजीशन। 20 degree flexion, 10 degree abduction, 5 degree external rotation, 20, 10, 5, समझे? चाइल्ड में क्या होगा? चाइल्ड में हेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हेड डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा? पैथोलॉजिकल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो जाएगा, और क्योंकि ग्रोथ प्लेट डिस्ट्रॉय हो गई इसलिए देयर विल बी शॉर्ट में, मतलब ग्रोथ के साथ साथ लिम्ब ग्रो ही नहीं करेगा। और इसलिए ये वाला जो हिप है इसमें पेल्विक सपोर्ट ऑस्टियोटॉमी करनी पड़ती है,
बार बार वो पेल्विक सपोर्ट ऑस्टियोटोमी रिमॉडल करके सीधी हो जाती है। ट्रैक्शन देकर रखना पड़ता है जिससे कि लेंथ छोटी ना हो, और बाद में लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर करने पड़ता है। सेप्टिक आर्थराइटिस इज वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन है चिल्ड्रन, वेरी डिसेबलिंग कंडीशन। इसलिए वो जो सुई देते हो फीमोरल वेन में वो बिल्कुल एसेप्टिक होनी चाहिए, है ना। जो वेट ब्लड निकालने के लिए वेन में इंजेक्ट करते हो ना, ब्लड निकालने के लिए बेबी का, उसको मस्ट मेक श्योर दैट इज टोटली aseptic to prevent this complication of septic arthritis। तो किस पोजीशन में हिप यूज करेगा septic arthritis में? Flexion, abduction, external rotation, and there will be apparent lengthening, no true change in length। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस का होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता इसलिए है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एडल्ट मेल में है, फीमेल में कम होती है, बहुत कम होती है। मोनो आर्टिकुलर नहीं, पॉली आर्टिकुलर है, अक्यूट ऑनसेट नहीं, इंसिडियस ऑनसेट है। तो SA एंड AS, ठीक है। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में तो पूरा सेपरेट था, बट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को तो बहुत शॉर्ट में कहें तो यंग मेल प्रेजेंट्स विद insidious onset bone pains in the sacroiliac joint going up to the spine, जिसको हम लोग कहते हैं मैरी स्ट्रम्पल डिजीज। So it goes up to the spine and ankylosis the costovertebral joints and the spine, जिसको तो हम स्पाइनल टाइप कहते हैं या मैरी स्ट्रम्पल डिजीज कहते हैं, नहीं हाँ मैरी स्ट्रम्पल डिजीज। दूसरा जो है वो लार्ज जॉइंट्स लोअर लिम्ब, लार्ज जॉइंट्स एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट लोअर लिम्ब, इसको हम लोग कहते हैं बैस्ट्रूज, बैस्ट्रूज डिजीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और इसमें यही है फिजियोथेरेपी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, खासतौर से स्पाइन बचाओ, कोस्टोवर्टेब्रल एंकाइलोसिस बचाओ, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करो, और अगर सिग्निफिकेंट एंकाइलोसिस हो जाए डिफॉर्म पोजीशन में तो करेक्टिव ऑस्टियोटोमी करनी पड़ सकती है या टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। So this is the only indication of total joint replacement in young patient, ठीक है। अब आ गई TB, tuberculosis। I have told you tuberculosis is always secondary, is always secondary। तो बाकी जो और जगह tuberculosis है उसके तो फीचर्स नहीं, weight loss, evening rise of temperature, family history positive, cough, hemoptysis वो तो ठीक है, that may or may not be there। इसके बाद ब्लड में चलता है, तो जब ब्लड में चलता है तो इसका मतलब क्या करोगे, स्पूटम को AFP करोगे, एक्सरे चेस्ट जरूर करोगे। इसके बाद ब्लड में चला ऑर्गेनिज्म तो लिम्फोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, उसके बाद क्या हुआ, it comes and gets deposited, it comes and gets deposited here। यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है, there is a triangle like this। अगर हेड को और शाफ्ट को खींचो तो this triangle is called as Babcock's triangle, it is called as Babcock's triangle। तो ज्यादातर ये जो है इस Babcock's triangle में डिपॉजिट हुआ,
और यहाँ पे सेंटर में केलिएशन हुआ, फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स आए, मैक्रोफेज हुए, फिर फिलॉइड सेल्स बन गए, फिर लिम्फोसाइट्स भी आ गए, फिर फाइब्रोसिस हुई, फिर लिक्विफैक्शन हुआ। टिपिकल फीचर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और इससे क्या हुआ कि एक तो हुआ कि साइनोवियम इन्वॉल्व हो गई। फर्स्ट थिंग इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनोवियम। So there is pain, there is limp, there is synovial effusion, and you get flexion, abduction, external rotation, apparent lengthening, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गया। तो जब आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व हुआ तो जब मूवमेंट हुआ तो पेन हुआ। सो दैट मीन्स नाइट क्राइज, रात में बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और आइलियोसॉस्पैज़म में चला गया। आइलियोसॉस्पैज़म में चला गया इसका मतलब फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी स्क्रूड विथ अपीयरेंट शॉर्टनिंग। ट्रू शॉर्टनिंग नहीं है, करेक्ट। और इसके बाद या हेड डिस्ट्रॉय हो गया, या एसेटोब्लम डिस्ट्रॉय हो गया, या लिगामेंट डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये क्या होगा? पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप। तो पार्शियल और कंप्लीट पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप। कभी कभी ये होता है कि यहां पे हेड है और यहां पे एसेटोब्लम रह गया, तो ये तो कंप्लीट डिस्लोकेशन हो गया। और कभी कभी ये होता है कि ये एसेटोब्लम है और ये हेड है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा तो हेड दबा और थोड़ा एसेटोब्लम दबता चला गया। एसेटोब्लम becomes shallower and higher. So this is called as wandering acetabulum. This is called as wandering acetabulum. So that is TB stage 3. Treatment is rest, traction, supportive treatment, anti-tubercular treatment. और अगर पैथोलॉजिकल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप हो गया तो क्या करोगे? ये हो गया ना पैथोलॉजिकल पैरालिटिक। तो अगेन यू हैव टू रिलाई ऑन pelvic support of trap. You have to rely on pelvic support of trap. All right. तो आज जो है ये 3 इंफ्लेमेटरी कंडीशंस पूरी हो गई। कॉन्जेनिटल ट्रॉमेटिक, इंफ्लेमेटरी, न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लास्टिक पढ़ा दी तुम लोगों ने? वो ट्यूमर्स पढ़ा दिए? नहीं पढ़ा है। कॉन्जेनिटल ट्रॉमेटिक, इंफ्लेमेटरी, न्यूप्लास्टिक, डीजेनरेटिव, मेटाबॉलिक, पैरालिटिक, यही है ना? पर मेरे ख्याल से सारी इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ा दी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करने की है, ओल्ड वुमन slips and falls in the bathroom, have a flexion, adduction, external rotation deformity with true shortening above the trochanter. Vascular sign of Naras is negative. Telescopy should not be tested. Cannot raise the limb in air. Diagnosis: fracture neck of femur or trochanteric fracture. In fracture neck of femur, the tenderness is in the Scarpa's triangle. The trochanter is not thickened or tender, and the deformity is not too much marked. Whereas in the trochanteric fracture, the trochanter is thickened, tender, and the deformity is too much marked. Okay? Because it is extracapsular. Capsule is not holding it in position. X-ray, in an X-ray pelvis AP view with both hips in identical position, you should look for evidence of fracture. Evidence is broken Shenton line,
presence of fracture line. You should look at type of fracture, anatomical type, subcapital transcervical basal. Powell's angle, Gardner's classification. Gardner's classification is incomplete, complete undisplaced, complete partially displaced, complete completely displaced. Then you should look for complications in a old case, which means desorption of neck, avascular necrosis, osteoarthritis and osteoporosis. Treatment: below 65 years, try to retain the head by close reduction and internal fixation by dynamic hip screw in adults, or by pins, Nowell's pin or Ostenthur pins in children. Nowell's pin, Knowles, Nowell's pin, or Ostenthur pin in children. In case you fail to reduce, you can do a displacement of strut. Open reduction of fracture neck of femur is experimental. So displacement angulation of strut knee in case you fail to reduce and you want to retain the head. If the head is avascular or the age is old, then you do a total hip replacement. Post-operatively, physiotherapy, care of wound and gradual weight bearing as soon as possible. So this is fracture neck of femur. Don't forget fracture neck of femur. It is your usual log case. ठीक है? 5 मिनट में उसके बारे में बताने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. आ जाएगी?